Good evening, everyone. I hope I'm audible. Yes, no, folks. Am I audible, folks? Yes, sir. Okay, great. So today we'll be covering certain topics, which is what if analysis, which essentially is a scenario management. Then we'll cover goal seek, and then I'll give you an example of goal seek using PMT, and then data table. These are the four things that we need to see. We'll quickly cover these 3-4 topics, and for tomorrow we'll be covering another major topic, which will be on basically simultaneously. If you want to solve constraints, then how do you solve those constraints in Excel? ठीक है. This meeting is also being recorded, so that you can probably view that later on. But what I would want is, for tomorrow, before we start our class, I want you to run through certain examples so that you are able to understand कि आज हमने क्लास में किया क्या. Now, to show you what this particular thing does is, first of all, आपके यहाँ पर data के अंदर you should have this option which is what if analysis. यहाँ पर आपके पास होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर you can check, and then for tomorrow's class you should have solver for with you. ठीक है, solver कैसे करना है, options में जाके solver आपको मिल जाएगा. So for tomorrow, make sure that when you are coming for the class, you have solver with you. So let's understand this particular topic. What is this what if analysis and then scenario manager. So up, for example, you have a case where you have a particular commodity जो 32 rupees की है, arbitrary number that I've taken, and then you have certain quantity that a particular producer produces. So यहाँ पर हमें 200 लिखा हुआ है, आप 100 कर सकते हो, whatever quantity that you want to set, you have that. Then you have total revenue. Total revenue is nothing but price into quantity. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो you will find D3 into D4. So it will give you total quantity. Then transport cost, हमने assume किया कि transport cost is 10% of the total revenue. तो हमने 0.1 into D5 कर लिया. You can take up anything. तो आप अपने arbitrary example में कुछ भी कर सकते हो. Production cost हमने कहा है कि हर unit जो आपका produce है वो 20 rupees का बनेगा. So the production cost is 20 into D4. तो ये 20 into D4 becomes 4000. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आई हैव रिटन. एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट कॉस्ट जो होगी आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी. सो इफ़ यू ऐड दीज टू, यू विल गेट द टोटल ट्रांसपोर्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. एंड देन प्रॉफिट्स, जैसे इकोनॉमिक्स में होता है कि टी आर माइनस टी सी, प्रॉफिट्स इज नथिंग बट टी आर माइनस टी सी. सो यहाँ पर हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वी पुट इट, and this is going to give us this outcome. Now what is essentially what if analysis is कि what if analysis typically क्या मतलब कि अगर ये होता तो क्या होगा. तो इन दिस केस व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हमारी क्वांटिटी चेंज हो जाए, अगर आपका कोई एक वेरिएबल चेंज हो जाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी सारी चीज़ों के ऊपर. सपोज आपकी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन मल्टीपल सिनेरियो. सपोज आपकी क्वांटिटी 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 है, तो आपको पूरा एक एनालिसिस चाहिए. और मल्टीपल वो आ सकती हैं आपके पास कि 200, 100, 200, 300, 400, 500, 700 तक आपको जाना है. तो यू वांट दैट काइंड ऑफ एन एनालिसिस वेयर यू हैव द प्रॉफिट्स फॉर ईच पर्टिकुलर सिनेरियो. इसीलिए इसका नाम व्हाट इफ एनालिसिस या सिनेरियो, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजमेंट, बिकॉज सिनेरियो मीन्स कि आपका सिनेरियो जो अंडरलाइंग सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है. So what you need to do for this is how do you put in a scenario management, or how do you go through that is data पे आप जाएंगे और यहाँ पर what if analysis में you will get scenario manager. ठीक है, सिनेरियो मैनेजर में यू कैन मैं यहाँ पर जैसे एक और सिनेरियो भी ऐड करता हूँ. अभी आपके केस में यहाँ पर कोई सिनेरियो नहीं आ रहा होगा, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट ऐड अ सिनेरियो, एंड वो आपको बताएगा कि सिनेरियो नेम अगर आपको देना है तो यू कैन राइट डाउन एनी नेम फॉर एनी सिनेरियो. तो आप यहाँ पर डाल सकते हो. बट चेंजिंग व्हाट, सिनेरियो नेम तो आपको जो भी अगर आपको डालना है नहीं डालना वो फ़र्क नहीं पड़ता. सपोज मैंने सिनेरियो नाम रख दिया कि सिनेरियो नाम जो है वो है 100, कि अगर 100 क्वांटिटी होगी तो क्या होगा. फिर उसके बाद आई हैव चेंजिंग सेल्स, तो वो मुझसे पूछेगा कि कौन सा सेल चेंज करना है. अगर सिनेरियो चेंज हो रहा है तो मुझे पता है कि D4 जो है क्वांटिटी, मुझे उसको चेंज करना है. ठीक है, तो उसको चेंज करके एक बाय द वे इसके अंदर आप एक ही वेरिएबल चेंज कर सकते हो. यू कांट चेंज मल्टीपल वेरिएबल्स.
जब हम कहेंगे कि 2-3 वेरिएबल्स चेंज करना है तो आप फिर उसके बाद सॉल्वर पे चले जाओगे। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि मुझे एक ही वेरिएबल चेंज करना है, उस वेरिएबल को चेंज करके मेरा जो फाइनल आउटकम है उस पर क्या चेंज आएगा। तो मैंने यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किया कि हमारा D4 चेंज हो रहा है, और D4 चेंज होने के बाद उससे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये मुझसे ये पूछेगा कि D4, जस्ट अ सेकंड फोक्स, हेलो, yes folks, sorry. So what we have done is we have added यहाँ पर यहाँ पर सिनेरियो 1, तो सिनेरियो 1 हमने यहाँ पर इसको 100 लिख दिया, इसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल सिनेरियोज आ जाएंगे। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस सिनेरियो, 100 पे क्लिक करोगे तो वो 100 के हिसाब से आपको प्रॉफिट दे देगा। इसमें आप 400 क्लिक करोगे तो वो 400, 300 करोगे 300, 200 करोगे तो 200। सो दिस इज़ बेसिकली नेमिंग दीज सिनेरियोज की क्या नाम है, और आपको एडिट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, वो सारे सिनेरियोज को वो भी कर सकते हो। सो दिस इज हाउ सिनेरियोज आर मैनेज्ड, ठीक है। एंड देन वी विल सी समथिंग कॉल्ड एज समरी। पहले तो ये समझ में आया कि नहीं आया कि क्या हो रहा है? यस सर। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू दी फाइल। किसी ने फाइल ओपन करी थी या फाइल ओपन करी हुई साइमल्टेनियसली? सर मल्टीपल सिनेरियोज का रोल नहीं समझ जाएगा। मल्टीपल सिनेरियोज का मतलब कि अगर मैंने 100, अगर ये जो मैन्युफैक्चरर है ये कह रहा है कि मैं 100 यूनिट बेचूंगा तो वो प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। वो कहेगा कि मुझे 200 यूनिट बेचूंगा तो कितना होगा, 300 यूनिट बेचूंगा तो कितना होगा, 400 यूनिट बेचूंगा तो कितना होगा। तो उसको यूनिट आपने यहाँ से चेंज करने के बजाय यहाँ पर सारे सिनेरियोज लिख दिए हैं। अभी उसका यूजफुलनेस नहीं पता चलेगी, जब आप यहाँ पर ये समरी देखोगे ना तब यूजफुलनेस आएगी उसकी। आपके पास एक सर जैसे अगर आपने बोला कि अगर हमें 700 तक पता करना है तो हम 100 to 700 तक टाइप करोगे। इसका असली यूज़ पता है कहाँ आएगा? इसका असली यूज़ आएगा जब आप टेबल बनाओगे ना, तो ये आपको इस तरीके से टेबल दे देगा कि क्वांटिटी जब ऐसे ऐसे चेंज हो रही है तो मेरा जो क्या कहते हैं प्रॉफिट है वो ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। इस तरीके से आपकी टेबल बन जाएगी। तो ये आपको एक ऑटोमेटेड आपको बता देगा कि अगर आपने एक इनपुट चेंज किया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने एक डाली भी हुई है शायद से, चल नहीं अभी उसको भूल जाओ। बट वॉट इफ सिनेरियो इज बेसिकली टेलिंग यू कि वॉट इफ वन थिंग चेंजेस देन वॉट इज द फाइनल इम्पैक्ट ऑन द अदर वेरिएबल। तो ये आपको एक समरी सॉर्ट दे देता है। तो आई वुड वांट कि आप क्या करो कल के सेशन के लिए आई वुड वांट कि यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर 100, 200, 300, 400 आया हुआ है। आई वांट यू टू मेक 500, 600, 700। वो ऐड करके देखो। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो लोग लेट आए हैं, आप क्या करोगे, आप ऐड करोगे। अल्टीमेटली कुछ नहीं करना आपको, आप बस जाओ डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस का सिनेरियो मैनेजमेंट में ऑलरेडी ये सिनेरियोज लगे हुए हैं। आपके केस में पहले अगर कुछ नहीं है तो 0 होगा। फिर उसके बाद आप ऐड कर लो। ऐड करके सिनेरियो कौन सा डाल रहे हैं अब हम डाल रहे हैं 500, ठीक है। और उसको करो ओके, और ये इसको डाल दो, क्वांटिटी कितनी होगी वो 500 डाल दो यहाँ पर, और ये आ गया आपका 500 की क्वांटिटी। और ये जैसे ही करोगे तो ये आ गई। क्लियर? ठीक है। क्लास में आई विल टेक ऑल दी डाउट्स अगेन टुमारो बिफोर आई स्टार्ट विद सॉल्वर। आई विल टेक ऑल ऑफ दीज डाउट्स। देन यहाँ तक पक्का समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ देखो, अब समरी देखो। अगर आप समरी करोगे तो समरी के अंदर वो आपको बोलेगा कि समरी का पिवट बनाना है कि समरी सिनेरियो। आप समरी सिनेरियो करके देखिए तो ओके करो, तो ये देखो आपको समरी सिनेरियो उसने पूरा दे दिया, ठीक है। समरी सिनेरियो उसने दे दिया कि भाई अगर 500 क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी इतनी है, 200 क्वांटिटी पे ये है, 300 क्वांटिटी पे ये है, 400 क्वांटिटी पे है, 100 इस पे क्वांटिटी पे है, और 500 पे है। अब बाय द वे यहाँ पर क्वांटिटी और प्रॉफिट इसलिए लिखा हुआ है अगर आप देखो, क्योंकि मैंने इस सेल का नाम जो है प्रॉफिट लिखा हुआ है। अगर आप कोई नया अपना बनाओगे ना तो उसमें वो सेल का नाम देगा कि D9 ये है और D5 ये और D4 ये है। तो आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इस सेल का नाम चेंज करना है, E2 है ना, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया ब्लैंक, ठीक है। अब देखो इसका नाम ब्लैंक आ गया ना, E12 की जगह यहाँ पर इसका नाम ब्लैंक आ गया। तो मैंने वहाँ से इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया, प्रॉफिट नाम रख दिया इसका, एंड इसका नाम आई हैव चेंज इट टू क्वांटिटी, सो दैट यहाँ पर जब समरी सिनेरियो आ रही हो तो वहाँ पर सिनेरियो के हिसाब से वो सारी सिनेरियोज मुझे दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर क्वांटिटी और प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। व्हाट इफ एनालिसिस समझ में आया सबको? एनी डाउट्स इन व्हाट इफ एनालिसिस फोक्स? ठीक है, ओके।
नाउ लेट्स गो इन टू एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और यहाँ पर वो मैंने समरी भी बनाई हुई है कि व्हाट यू नीड टू डू, गो टू डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो, क्वांटिटी, वो सारी चेंज करो. लेट्स गो टू गोल सीक. अब गोल सीक क्या करता है? गोल सीक सेम एग्जाम्पल लिया है मैंने, फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. गोल सीक क्या करता है? गोल सीक जो है इट बेसिकली आपको बताता है. कई बार आप कहते हो ना कि मुझे टारगेट रखना है. सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे टारगेट रखना है कि मेरा 9 CGPA है, तो 9 CGPA आने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो आपका गोल सीक है. तो आपने एक टारगेट रख लिया कि ये मेरा टारगेट है. इस केस में इस बंदे ने टारगेट क्या रखा है, इस इंसान ने टारगेट रखा है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर उसने हमारा, तो हम प्रॉफिट निकाल रहे थे ना कि कितना प्रॉफिट होगा. इंस्टेड कई बार लाइफ में होता है कि हम टारगेट रखना चाहते हैं कि मैं इतना प्रॉफिट चाहता हूँ. ऐसी सिचुएशन आ सकती है, यस और नो? तो अब इस इंसान ने एक ऐसी सिचुएशन बनाई जिसने उसने टारगेट पहले सेट कर दिया कि ये मेरा टारगेट है. अब मेरा अगर ये टारगेट है और ये प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए. रिवर्स मैकेनिज्म है अब, कि आपने पहले टारगेट सेट किया और टारगेट सेट करने के बाद आप बता रहे हो कि क्वांटिटी कितनी होगी या प्राइस कितना होगा. बाय द वे प्राइस और क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर आपका ये सेट हो सकता है. आप प्राइस भी चेंज कर सकते हो. सपोज आपने कहा कि मुझे 200 क्वांटिटी बेचनी है, तो फिर आप प्राइस चेंज कर लेना. तो लेट्स सी कि कैसे होता है गोल सीक. सेम चीज़ है, आप डेटा में जाओ, व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पर गोल सीक है. गोल सीक में वो आपसे पूछेगा सेट सेल कि किस सेल को आप गोल बनाना चाहते हैं. ये समझ में आया? यहाँ पर मैं 5 इस वाले सेल को गोल बनाना चाहता हूँ ना, D9 को गोल बनाना चाहता हूँ. ये समझ में आया कि मैं गोल क्या है मेरा? यस सर. तो गोल मेरा है D9 और वैल्यू क्या सेट करना चाहता हूँ. सपोज आप कहते हो कि नहीं, मुझे 6,000 रुपये जो है ये मेरा टारगेट है. ठीक है. बाय चेंजिंग सेल में यहाँ पर वो कहेगा कि भाई किस सेल को चेंज करना चाहते हो ये तो बता दो, कि डू यू वांट टू चेंज प्राइस, डू यू वांट टू चेंज क्वांटिटी चेंज करना चाहते हो कि प्राइस चेंज करना चाहते हो. तो सपोज आपने कहा कि आई वांट टू चेंज प्राइस, तो सेम क्वांटिटी के लिए वो आपको प्राइस नया दे देगा और ओके करोगे. तो कैन यू सी कि उसने इस क्वांटिटी के लिए आपको बता दिया अगर आपको ये प्रॉफिट चाहिए तो प्राइस क्या होना चाहिए. समझ में आई ये चीज़ क्या हुआ? नो सर. देखो हमने गोल सेट किया, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गोल सेट, कि हमने पहले गोल सीक करा या गोल सेट किया कि मुझे ये गोल चाहिए. उस गोल के लिए मुझे क्या प्राइस या क्या क्वांटिटी चाहिए. वेरिएबल्स तो ये है ना, वेरिएबल्स क्या आपके जो चेंज होंगे, प्राइस और क्वांटिटी. ठीक है. तो प्राइस और क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा. आपने सेट कर दिया कि मेरा जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी पिछला वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ, कि आपने सेट कर दिया कि 32 रुपये ही प्राइस है, बट मेरा जो गोल है वो मान लो मैंने कहा 10,000 रुपये. ठीक है. मैंने कहा 10,000 मेरा टारगेट है, मेरा 32 रुपये प्राइस है. कितनी क्वांटिटी पे मुझे 32,000 रुपये, कितनी क्वांटिटी में मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा. ये समझ में आया कुमकुम कि क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर. ठीक है. 10,000 रुपये आई वॉन्ट टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज़. what should be the quantity at 32 rupees price that will result in a profit of 10,000 rupees. So for that what you need to do is go to data के अंदर यहाँ पर what if analysis के अंदर goal seek के अंदर पहले वो पूछेगा गोल कौन सा लेना है. we say that our goal is D9, और अगर D9 नहीं तो यहाँ पर अगर उसको आप प्रॉफिट लिख देते तो वो प्रॉफिट भी मान लेता उसको. आपने कहा कि मेरा गोल है 10,000 और बाय चेंजिंग सेल्स, अब उसने बोला कि किस सेल को चेंज करना है, तो मैंने कहा कि 32 रुपीज़ ही रहना चाहिए बट क्वांटिटी चेंज कर दो. है वो फॉर्मूला D9 तो है ही, मैंने D4 लिया था. ओके लेट्स चेक इट अगेन. D9 I want to create it as 10,000 by changing quantity. Which cell must contain? Oh सॉरी फोक्स, मैंने क्या किया है, एक गलती कर दी है मैंने. हाँ मैंने क्या किया, मैंने इसी को चेंज कर दिया. यहाँ पर ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ था ना, मैंने फार्मूला को चेंज कर दिया. हाँ नाउ आई विल डू इट. मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया था गलती से, मुझे टाइप नहीं करना था. गोल सीक में मैंने कहा कि मुझे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए बाय चेंजिंग क्वांटिटी, एंड उसने मुझे देखो क्वांटिटी के हिसाब से उसने मुझे दे दिया कि 1136 क्वांटिटी होगी एट 32 प्राइस, तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट होगा.
और आप अगर आप कहते हो कि मेरी क्वांटिटी जो है, आई डोंट केयर, सपोज आप कहते हो कि आई डोंट केयर माई क्वांटिटी शुड बी 100 यूनिट्स ओनली, ये भी तो हो सकता है। आप कहो कि मुझे 100 यूनिट ही सामान बेचना है, मेरे पास 100 यूनिट ही पड़े हुए हैं मार्केट में, तो फिर आप क्या, व्हाट विल बी दी प्राइस एट विच यू सेल। तो इस केस में गो टू गोल सीक, यू सेट इट टू 10,000 अगेन, कि मुझे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, एंड बाय चेंजिंग विच सेल, बाय चेंजिंग प्राइस, तो ये आपको बता देगा कि 133 रुपीज़ का बेचना पड़ेगा आपको, और आपका 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बाकी सबको? Yes. ओके, ग्रेट। Yes, sir. ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पीएमटी। पीएमटी इज़ बेसिकली कि जब आप कोई लोन लेते हो, तो आपको पता है कि लोन पे ईएमआई आती है, ये आपको सबको पता है कि लोन पे ईएमआई होती है। Yes, sir. हाँ, तो अब यही सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मैं आपको कल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ये क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि लोन अमाउंट क्या है, ठीक है। कई बार मैं ये करता हूँ ना, कई बार ये भी तो लाइफ में कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि यार मुझे जो है क्या कहते हैं, सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। तो 1 लाख रुपए के लोन पे मेरी ईएमआई कितनी बनेगी, ये बता रहा है कि 665 रुपीज़ की ईएमआई बनेगी, अगर मेरा लोन 30 साल के लिए है और मेरा इंटरेस्ट जो है, एनुअलाइज जो इंटरेस्ट है, एनुअल इंटरेस्ट है 7% है। अगर ये सिनेरियो है तो मेरा पीएमटी के हिसाब, तो मेरा ईएमआई जो है वो 665 रुपीज़ का बनेगा। अब इसका ये पीएमटी का फॉर्मूला करता क्या है, ये बेसिकली आपको देता है कि आपकी ईएमआई कितनी बनने वाली है। उसके लिए आप क्या कहते हो, आप बताते हो, तीन चार चीज़ें बताते हो। पहले अगर आप फॉर्मूला देखोगे पीएमटी का, इज इक्वल टू पीएमटी डालोगे, तो वो आपको बताएगा क्या क्या। पहले तो वो आपसे पूछेगा रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर और वो आपको चाहिए, आपको मंथली बेसिकली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा। फिर वो आपको बताएगा कि कितने महीने में आप पेमेंट करना चाहते हो वापस। तो पहली चीज़ कि मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ध्यान रखना मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर कितने महीने में आप लोन वापस करोगे, और फिर तीसरी चीज़ कि आपने लोन कितने का लिया, विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू, पीवी। एफ और टाइप अभी आप छोड़ दो। एफ और टाइप क्या है कि अगर बाई चांस आप कहते हो कि इन दी एंड मेरे पास 5,000 रुपये का लोन रह जाना चाहिए पीरियड के बाद, तो वो एफ की वैल्यू है, ज़रूरी नहीं है डालना। और टाइप की पेमेंट जो है वो शुरू में पेंडिंग है कि एंड में पेंडिंग है, यू डोंट नीड टू पुट दैट। सो what you need to do for the PMT formula is कि you need to tell Excel कि आपका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अभी यहाँ पर हमारा ईयरली जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है, 7%। तो 7% को मंथली बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यस फोक्स, 7% को मंथली कैसे बनाऊँ मैं, कैन यू सी दी फॉर्मूला, C4 डिवाइड बाई 12, C4 डिवाइड बाई 12। ये चीज़ समझ में आई कि मैंने मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लिया। 7% अगर पूरे साल का है तो पूरे मंथ का, एक मंथ का कितना है, 7% बाई 12, वो आपको मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद वो दूसरी चीज़ क्या पूछता है, दूसरी चीज़ पूछता है कि कितने महीने का लोन है, ठीक है। रिमेंबर, क्योंकि आप मंथली इंटरेस्ट डाल रहे हो तो आप ये भी बताओगे कितना महीने। सपोज मैंने कहा 30 साल का लोन है, तो 30 साल में कितने महीने होंगे, 30 साल में 12 इंटू 12 मंथ्स इंटू 30, 360 मंथ्स। तो मैंने C3 डाल दिया। एंड इनिशियल अमाउंट कितना, बोरो कितना किया है, 1 लाख रुपीज़। तो इससे मेरे पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया, इससे मेरे पास आ गया कि मेरा अगर ये चलता रहेगा तो 665 रुपीज़ की EMI बनेगी फॉर 30 ईयर्स। पहले तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ना सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि मैं एक घर खरीद रहा हूँ और मेरे पास EMI जो देनी है मुझे एट मैक्स 50,000 रुपये की देनी है, तो इसमें मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, जो भी अभी तक आपने सीखा, सोचो अभी तक जो आपने सीखा उसमें मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। गोल सीक। कैसे गोल सीक यूज़ करोगे रुचिका, सोचो। हम लोग C5 को डालेंगे अपना सबसे पहले वाले से। ये देखो आप क्या करोगे, गोल सीक करोगे, गोल सीक में C5 को डालोगे और उसकी वैल्यू क्या सेट करना चाहते हो, उसकी वैल्यू आप सेट करना चाहते हो, मैंने कहा मैं 50,000 रुपये दे सकता हूँ यार, ठीक है। और उसके बाद आप क्या होगे कि चेंज किसको करना है, वैल्यू किस चीज़ को चेंज करोगे, ए की वैल्यू चेंज कर सकते हो। ध्यान रखना कि जब आप सिर्फ एक वेरिएबल चेंज करना चाहते हो
जब सिर्फ आप एक ही वेरिएबल चेंज कर सकते हो तो आप गोल सीक यूज़ करोगे। और जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स चेंज कर, आप कहते हो कि यार मुझे इंटरेस्ट भी चेंज करना है, मुझे ड्यूरेशन भी चेंज करना है, लोन सीक भी करना है, अगर मल्टीपल चीज़ें आ गई तो आप सॉल्वर यूज़ करोगे। बट अगर आपका एक ही चीज़ को चेंज करना है, एक ही इनपुट वेरिएबल को चेंज करना है तो आप यूज़ गोल सीक। तो मैंने कहा कि मेरा लोन अमाउंट को चेंज कर दे। जैसे आप ये करोगे, इसने ये वैल्यू इसलिए चेंज कर दी क्योंकि ये 50,000 रुपये हो गया। बट मैं आपको बताता हूँ कि गलती कहाँ हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि गलती क्यों हुई है यहाँ पर। क्योंकि ये जो आना चाहिए ये नेगेटिव में आना चाहिए। जब यहाँ डाल रहे हो तो आप बोलो -50,000 कि इतना मेरा जाएगा, और बाय चेंजिंग सेल दिस, एंड वो आपको दे देगा कि इसीलिए वो रेड में आ रहा है, ठीक है, ब्रैकेट्स में और रेड में आ रहा है कि 75,15,378 रुपीज़ का मैं लोन ले सकता हूँ, जिसकी मेरी EMI 50,000 रुपये पर मंथ जाएगी। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये आपको गोल सीक ने उसने कहा फाउंड अ सोल्यूशन। सो दिस इज़ हाउ यू सी गोल सीक। आई वॉन्ट यू टू ट्राई मल्टीपल एग्जाम्पल्स फॉर दिस, कि अपने आप से कोई एग्जाम्पल बनाओ, कोई और एग्जाम्पल बना लो, हाउसिंग लोन का बना लो, इफ़ योर पेरेंट्स हैव टेकन एनी लोन तो उनका एग्जाम्पल बना लो, ठीक है। गाड़ी का अगर आप घर पे किसी ने गाड़ी ली हुई है तो उसका एक एग्जाम्पल बना के देखो कि क्या क्या गोल सीक हो सकता है। सो यहाँ पर ये यूज़ होता है। एंड देन फाइनली डेटा टेबल। डेटा टेबल में कुछ भी नहीं है। डेटा टेबल में आप क्या करते हो, आप यहाँ पर एक टेबल बना सकते हो पूरी की पूरी। टेबल कैसे बना सकते हो, यहाँ पर आप सपोज़ मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर आप सपोज़ एक जो आपने क्वांटिटी यहाँ जो प्रॉफिट लिखा था वो आपने लिख दिया कि ये मेरा प्रॉफिट की वैल्यू है, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर डेटा टेबल, ठीक है। डेटा टेबल कैसे बनाऊँगा, यहाँ पर जाओ व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, इनपुट रो जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर जितनी भी आपने क्वांटिटीज़ डाली है ना, वो क्वांटिटीज़ ये वाली आ जाएंगी, ठीक है। इनपुट रो सेल क्वांटिटी सेल डाल दी है, हाँ ठीक है, सॉरी D4 ने डाला था। नाउ सपोज़ अब आप क्या कहते हो कि मुझे सारे के सारे जो आपके सिनेरियोज़ थे, यहाँ पर जितने भी सिनेरियोज़ थे वो यहाँ पर वापस चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू इज़, लेट्स लुक एट इट अगेन। व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पर आपने कहा कि मुझे जितने भी मेरे सिनेरियोज़ थे क्वांटिटी और प्रॉफिट के, वो सारे यहाँ पर लिस्ट डाउन चाहिए। जैसे आपकी यहाँ पर समरी सिनेरियो थी वैसे यहाँ पर भी चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पर जो भी आपका जो प्रॉफिट का वो आया था वो आप यहाँ डाल दो, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू डाल के प्रॉफिट डाल दो, ठीक है। तो आपके पास ये प्रॉफिट का अमाउंट आ गया, ठीक है। इसको करेंसी में अगर आपको चेंज करना तो आप करेंसी में भी चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करो, ठीक है, एंड आप कहो कि आई वांट डेटा एंड आई वांट व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, एंड आपका जो इनपुट है वो कॉलम इनपुट है क्योंकि आपके यहाँ पर कॉलम्स में आएगी सारी चीज़ें। और ये 100 सेलेक्ट करो, एंड यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पर क्वांटिटी नहीं डाली है, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी पेस्ट कर दो सारी की सारी, और ये देखो यहाँ पर उसने अपने आप ही कैलकुलेट करके आपको सारे के सारे वो दे दिए जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं। एंड यू कैन देन जस्ट पुट करेंसी टू इट, एंड करेंसी के साथ ही आ गया। सो बेसिकली कुछ नहीं है, जो चीज़ आपको यहाँ पर सिनेरियो में मिल रही थी वही चीज़ आपको टेबल के फॉर्म में, डेटा टेबल के फॉर्म में मिल जाएगी। तो कई बार आपको टेबल बनानी हो तो टेबल आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि एक वैल्यू डाल दी और क्वांटिटी सारी डाल दी, वो अपने आप ही उठा के उसके साइमल्टेनियसली जितनी भी सारी प्रॉफिट्स थे वो सारे सिनेरियोज़ बना के आपको वहीं पे दे देगा। एंड यहाँ पर आप अपना लिख लो 100 मेरी वैल्यू थी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। ज़्यादा यूज़ नहीं है, इतना डेटा टेबल का इतना यूज़ नहीं है, बट गोल सीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इफ एनालिसिस का जो ये सिनेरियो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ें समझ आई। डेटा टेबल अगर नहीं भी होगा तो चल जाएगा, कुछ इतना वो नहीं। क्लियर फोक्स? यस, नो? Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. So we'll practice more on these questions. I'll give you some data sets to practice for what if analysis, and especially goal seek, क्योंकि goal seek is important for us. And then tomorrow we are doing a very important thing which is called as solver. ठीक है, so don't miss tomorrow's session.